Dr. Kamalpreet Singh, Agriculture Production Commissioner, I would request him to come on stage. Shri Pradeep Sharma ji, Advisor to the Chief Minister, and Shri Karthik Jayaraman, co-founder of Way Cool. These three gentlemen are involved in various ways in the innovation and in the changes that you see in agriculture in Chhattisgarh. Dr. Kamalpreet Singh is an IAS officer of the 2002 batch. He started as SDM in Bastar, and he was Director Health Services. He launched the 102 mobile ambulance. And during COVID, he handled practically every emergency operation there was in the state, from PDS to transport. So please put your hands together for Dr. Kamalpreet Singh. And he's been very important in helping us put this event together. Shri Pradeep Sharma ji is advisor to CM. He's a Kisan. He's farmed all over the country but chose to come back to Chhattisgarh. And he believes in, he comes from a farming family in the state. But he's got 2 MTechs from IIT Dhanbad and NIT Raipur, and he believes he's been very important in developing the framework for the NGGB. And the third gentleman here is Mr. Karthik Jayaraman. He's the co-founder of Way Cool, which believes in organizing India's farm-to-fork supply chain to deliver cleaner, fresher, and better produce to consumers, to ensure higher returns to farmers, reduce wastage and inefficiency. He's got the experience of 25 years in engineering, automotive and managerial consulting. Kamalpreet Singh ji, I'd like to start with you because the NGGB seems to be a truly innovative scheme, and we've heard a little about it. But I think if you explain to us what Narwa, Garwa, Gurwa and Bari means, and how it becomes an integrated farming system. देखिए, ये नरवा, गुरवा, गरवा, बाड़ी बेसिकली गांव और इसकी सेल्फ डेवलपमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हों या अलाइड एक्टिविटीज़, सिंचाई से, पशुपालन से, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के बचाव में और सॉइल प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में ये सारे कंपोनेंट्स इस पूरी चेन को कवर करते हैं। और जो आज के दिन हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हों, वेटनरी के हों, हॉर्टिकल्चर के हों, या कृषि के अलावा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके हों, ये सारे इन कंपोनेंट्स को फोकस करते हैं। और इसमें अन्य योजनाओं से, यानी कि जो दूसरे डिपार्टमेंट की स्कीम्स भी हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को कन्वर्जेंस से, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, उनको कन्वर्जेंस से हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर ये कॉमन है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हैं जिनकी एक्टिविटीज़ कन्वर्ज होती हैं। इनफैक्ट प्रदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि ऑफन ये साइलोज में काम करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई वी सी समटाइम्स दैट यू डोंट हैव दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो कैसे आपने ये सोचा कि इनको इंटीग्रेट करें और इकट्ठा काम कराएं? ये आपकी अपनी एक्सपीरियंस से था कि आपने कहीं मॉडल देखा और आपने सोचा यहाँ करना चाहिए? Well, thank you, ma'am. It's a very good question actually. And in Chhattisgarh, a prosperity index of any village is being counted by these 4 items. Whether this village has any rivulets, water resource, how is the cattle population of that village, and third is whether these people have proper organic mass, and the last is, do they have a good farmyard body, means kitchen garden. So all these 4 सॉरी, पीछे कोई भाई लोग हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज़। So these are 4 prosperity indicators. हमारे यहाँ किसी की शादी लगती थी ना,
तो वो लड़के लोग तो जाते नहीं थे देखने के लिए। उनके माँ बाप पूछते थे कि जिस गांव में तुम जा रहे हो वहाँ ये 4 चीज़ देख के आ जाना। वो गांव में पानी के लिए कोई नाला है कि नहीं, मेरी बेटी को दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा अब पूछेंगे टॉयलेट है कि नहीं। एग्जैक्टली दूसरा, कभी रात को कोई चला गया तो उसके बगीचे में, घर के पीछे जो फार्म यार्ड किचन गार्डन है, वहाँ कुछ ना कुछ फल फूल सब्जी होना चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन को बताता है। तो ये जो 4 चीज़ें थी हमारे गांव के प्रॉस्पेरिटी के इंडिकेटर्स थे। तो जब हम लोग सोच रहे थे तो मैंने ये देखा कि विद द एडवेंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल इनसाइड द विलेज, ये चारों चीज़ें बुरी तरह रूइंड हो गई। छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात ध्यान में आती है कि ये हिमालय के बाद दूसरा रिवराइन सिस्टम है इंडिया का। मतलब छत्तीसगढ़ से लगभग 32 अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, बड़ी नदियाँ हिमालय के बाद से। महानदी, सोन, लार्जली नर्मदा और हसदो, नंबर ऑफ रिवर्स है ना। तो ये जो रिवर सिस्टम है, इसका सोर्स क्या है? ना हमारे पास कोई ग्लेशियर है, ना हमारे पास हिमालय है। वो ये है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट मानसून मिलते हैं। जो बॉम्बे से मानसून आता है और जो बे ऑफ बंगाल से मानसून आता है, वो यहाँ कोलाइड करता है। तो ये 82 डेज़ का जो मानसून होता है, वो जो धीरे धीरे पानी गिरता है, उसमें ये पानी नीचे जाता है जंगलों से और धीरे 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 नालों से बह के हर गांव से होते हुए वो रिवराइन सिस्टम बनाता है। तो ये जो नाले थे, छत्तीसगढ़ में 33,000 नाले हैं, 20,000 गांव हैं और 33,000 नाले हैं। अभी भी है कि हाँ। सब? अच्छा, अभी भी हैं तो मतलब पहले कितने थे पता नहीं। जी, अभी भी हैं। तो ये जो है, इनको वापस रिजुविनेट करना बहुत ज़रूरी था, ताकि गांव में पहला नेचुरल रिसोर्स वाटर ठीक से मिल सके। और साफ पानी, वो साफ सबसे पानी मिल जरूरी तो वही है। तो इस बार जो नरवा, जो उसका पहला कंपोनेंट है एनजीजीबी का, दैट कम्स फ्रॉम द रिजुविनेशन ऑफ रिवलेट्स। तो हम लोगों ने जीआईएस इंडिकेटर्स और बाकी सब चीज़ों के उपयोग करके, सैटेलाइट इमेजरीज़ की यूज़ करके हम लोगों ने बहुत अच्छे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए और सारे डिपार्टमेंट ने मिल के, अभी आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि 33,000 नालों में 11,700 नालों का रिजुविनेशन का काम शुरू है या कंप्लीशन के स्तर पे। मतलब जंगल के भीतर में लगभग 4,800 नाले रिजुविनेटेड हो चुके हैं। 2 लाख हेक्टेयर जंगल पूरी तरह से रिजुविनेट हो गया। वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन का काम अपने आप दिख रहा है। इस बार जो बरसात हुई थी तो काफ़ी लंबा एक ड्राई स्पेल आया 20 दिन का। तो जो नालों के किनारे किनारे के नदियाँ नाले थे, वो सब रिचार्ज हो चुके थे। तो वो हमारे खेती में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही कैटल, सेकेंड जो गरुआ है जी। कैटल जो है, हम लोगों ने कभी गाय को दूध के लिए नहीं पाला। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कमलप्रीत जी, आई जस्ट वांट टू इंटरजेक्ट हियर। जब हम छत्तीसगढ़ के जंगलों के बारे में सोचते हैं तो हम ज़्यादा नक्सल, हमारा इमेजरी नक्सल इमेजरी होता है। तो वो भी एक सच है, बट ये भी एक सच है दैट द फॉरेस्ट आर रियली द प्रिजर्व ऑफ ऑल आवर ट्रेडिशनल विजडम एज वेल। यस, एंड 33% ऑफ छत्तीसगढ़ इज ट्राइबल, इफ आई एम नॉट यस। मिस्टेकन। देखिए, I just wanted to इसमें come मैं in. ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 44% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है, जोग्राफिकल लैंड का। मान लीजिए 1,32,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो 44% उसमें फॉरेस्ट एरिया है, That must be one of the highest in वन ऑफ द the हाईएस्ट country. इन Yeah. कंट्री। लेकिन अगर आप नक्सल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो आज के दिन ऐसे कुछ विलेज जिसका एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट की मशीनरी फ्रीली मूव नहीं कर सकती, हार्डली 200-300 गांव हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की मशीनरी फ्रीली मूव नहीं कर सकती है। बाकी जगह कहीं पे कोई ऐसा रिस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और क्या रहता है कि इस छोटे मोटे इंसिडेंट को कई बार आउट ऑफ द प्रपोर्शन ब्लो कर दिया जाता है, तो लोगों में एक फियर बैठ जाता है कि इधर मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है और यहाँ की पोस्टिंग ऑल्सो या- पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाती है। तो मैं उसमें एक बताना चाहूँगा कि पिछले अभी कुछ महीनों से जगदलपुर जो हमारा बस्तर का मेन टाउन है, सबसे बड़ा शहर है वहाँ का,
वहाँ पे डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी है रायपुर से एंड थ्रू रायपुर और हैदराबाद से। तो ऐसा, और डेली फ्लाइट्स आती है जाती है और लगातार बाहर से भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए हो सकता है कई जगह लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से लोगों को ऐसी जानकारी ना हो, लेकिन ऐसा बहुत कम एरिया है। और फॉरेस्ट किसानों के लिए, जो वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल्स के लिए एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स ऑलरेडी है और उसको बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, दैट इज व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट एनजीजीबी। आप बता रहे थे जो जी। दूसरी बात कह रहा था कि हम लोगों ने गाय कभी भी दूध के लिए नहीं पाली, जी क्योंकि ट्राइबल इलाकों में आपको पता होगा कि दूध ज़्यादा लोग पीते नहीं हैं। जी तो हम लोग जो है वो इसलिए पालते थे कि हमारे खेतों में कंपोस्ट पहुंच सके। जी। हमारी जो गाय है, हम लोग हमेशा बैल बाहर से लाते थे, गाय कभी बाहर से नहीं लाते थे। अच्छा, ठीक है, बैल कहाँ से आते थे? बैल आते थे, ये हरियाणा से आते थे, अच्छा। उत्तर प्रदेश से आते थे, आपके यहाँ गुजरात से आते थे, विदर्भ से आते थे, आंध्र प्रदेश से आते थे। गाय नहीं आती थी, क्योंकि वो जो गाय हमारी है, छोटी गाय जिसको हम कोसली बोलते हैं, वो गाय हमारे खेत का बचा हुआ पराली खा के हमको खूब सारा गोबर देती है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर है। उसको हम अपने खेतों में डालते हैं। तो मैम आप सोचिए कि कितनी प्रोडक्टिविटी छत्तीसगढ़ के छोटे सी जगह की है कि हमारे पास 22,000 वैरायटी के धान हैं। किसानों ने 22,000 वैरायटी के एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक धान प्रोड्यूस किया, प्रिजर्व किया, डेवलप किया। तो ये कम्युनिटी जो है बहुत साइंटिफिक कम्युनिटी थी, जो गायों को इसलिए पालती थी कि वो उनके खेतों के सॉइल स्ट्रक्चर को बना के रख सके। तो उसको हम लोगों ने, वो भी ख़त्म हो रहा था जी। क्योंकि लोगों को फर्टिलाइज़र आ गया, केमिकल फर्टिलाइज़र आ गया, ट्रैक्टर के आने से बैल बेकार हो गए। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, गाय चली जाएगी ना तो फिर हमको फर्टिलाइज़र का रास्ता नहीं मिलेगा। जी। उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, गौठान बनाया। उस गौठान के भीतर में पुआल को, जो पैरा है, पराली है, उसको ला के रखा। गांव वालों ने दान किया, उसको ला के हम केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देते हैं, वह रहती है। वो जो गोबर आता है पूरा गांव का, जो हमारे मुख्यमंत्री जी आपको बता रहे थे, 2 रुपये किलो में खरीदा। बहुत हंसी उड़ा रहे थे लोग उसकी। आज सब कोई नतमस्तक है उस योजना के सामने। वो उस योजना के सामने नहीं, वो जो भूपेश बघेल के अंदर किसान है ना, जिसका दृढ़ संकल्प है, उसके सामने नतमस्तक हैं। इसीलिए किसान को नेता होना चाहिए, अभिनेता को नहीं। तो वो जो है, तो मैंने जितनी पढ़ाई की थी और जितना दुनिया में जी। देखा था, उसको उसके थ्रू अपने गांव को देखना शुरू किया। अच्छा। तो ये सब आइडिया जो है वहाँ से निकला। यही आइडिया पे भूपेश जी गांव में पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए सोच रहे थे और मैं नौकरियां करते हुए सोच रहा था। जी इसलिए हम लोगों की लगभग ट्यूनिंग एक जैसी थी। जी। तो वो मुझे हमेशा एक प्रश्न देते थे, तो मैं उसका उत्तर खोजता था अच्छा। और हम सब मिलके फिर उसको देखते थे कि ये पूरी तरह से सही है कि नहीं, जी। थोड़ा अमेंडमेंट करके फिर उसको आगे किए। तो ये इस तरह से आया। Right. Mr. Jayaraman, may I bring you in here? We've heard of very interesting innovations, but eventually how do you get it to the market, which is really where you come in, the direct marketing, the marketing of the produce. So what are the things that the government here could do to make sure that this gets out? Kaveri ji, I think we should go back a bit to the context कि पिछले 60 साल में हमारी फोकस क्या थी और अब हमारी फोकस क्या होनी चाहिए। पिछले 60 साल में हमारी फोकस PL 480 की लेगेसी के ऊपर थी। टुडे वी हैव कॉन्कर्ड दैट प्रॉब्लम। हमारी देश फूड सरप्लस नेशन हो गया है अभी। नाउ आवर फोकस इज फ्रॉम मोर यील्ड पर एकड़ टू मोर इफेक्टिव रिटर्न्स पर एकड़। अभी 1 एकड़ में कंसिस्टेंटली ज़्यादा रिटर्न्स फार्मर कैसे पाएँ, उसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। उसका पहला जो स्टेप है, डिमांड क्या है, मार्केट के डिमांड क्या है, उसके हिसाब में से हमारी कल्टीवेशन प्लानिंग हो रही है क्या। इसके लिए इंफॉर्मेशन फ्लो चाहिए डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। आज क्या हो रहा है, आप बता रहे थे कि 80 रुपये दे रहे हैं आप अभी टमाटर के लिए। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 4 महीने में आप पेपर में पढ़ेंगे कि 1 रुपये में चल रहा है दाम, क्योंकि अभी 80 रुपये देख के सभी किसान लोग अभी टमाटर लगाएंगे और उसमें से मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो इफ़ वी कैन शेयर रियल टाइम की प्लांटिंग कितना हो रही है, हमारे पास इतने सारे सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन है, ड्रोन इन्फॉर्मेशन है, प्लांटिंग कितना हो रही है, इससे यील्ड क्या होने वाला है, अराइवल्स क्या होने वाले हैं, उसके हिसाब में से इफ़ वी कैन हेल्प द फार्मर्स प्लान, द फार्मर्स आर स्मार्ट इनफ टू प्लान, अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन आए तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन टेक। इफ़ द
डेटा दैट इज़ अवेलेबल अभी गवर्नमेंट के साथ, इसरो के साथ, वेदर डिपार्टमेंट के साथ जो भी है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आए, and that is converted, and there are many private and entrepreneurs who can convert it, including us. That will be the first big benefit. दूसरा जो benefit है, the step that Chhattisgarh government has taken, NGGB, it is truly revolutionary. My children will thank the farmers here for following this, because for getting better returns per acre, reducing the cost of cultivation and making the agriculture into regenerative agriculture जो बोलते हैं, that is the most important step. Making it a source of income, not as Absolutely. something that we need to get rid of, you know. Absolutely. I mean, we seem to want to get rid of the farmer rather than integrating him. करेक्ट. अभी अब देखें तो वी स्पोक अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स. एनजीजीबी के अंदर सोलर पंप के सब्सिडी स्कीम्स हैं. यू हैव द स्कीम फॉर टेकिंग cow dung and converting it into vermicompost. These are absolutely brilliant schemes, and the most brilliant aspect is ये ग्राम स्वराज के ऊपर है. मैं ये और एक लेवल पुश करूँगा, बोलूँगा खेती स्वराज होना चाहिए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. We have a farm, 4 acre farm in which 2.5 acres is cultivated near Bangalore in Hosur. ये एक demonstration farm है. इस farm में बीज के अलावा एक भी चीज़ बाहर से नहीं आती. We have our own cattle. All the vermicompost is produced there. We produce our own pesticide from neem seed kernel extract. 2 acre में 51 varieties of crops हम cultivate करते हैं. और average income 60,000 rupees comes every month from that farm. We don't use pesticides, we use trap crops. We use neem seed kernel extract. The entire the entire farm is surrounded by water harvesting system. और ये हमने डिज़ाइन नहीं किया. Local farmer ने डिज़ाइन करके हमको दिखाया, हम सिर्फ उनको कॉपी किए. Then we put a solar pump with the solar panel on top of the water harvesting pond. So water also does not evaporate, and the entire pumping is done within the farm. So it is, and by this farm, the team along with our farmers have demonstrated कि 30% की savings हो सकती है with yield gain. दूसरी चीज़ है, crops that are higher value such as red lady's finger give double the returns of green lady's finger. But how do we make sure that this gets to the consumer? These are all wonderful ideas, but I would like to see a lot of the produce that I heard about today in the market at reasonable prices across the country. When can that happen, and how will that happen? Ma'am, इसके लिए the most critical element is to build short, fast and direct supply chains. Now there are, today the biggest advantage that we have is हमारी जो road systems है, they are very superior. Second, data is democratized. हर एक लोग के पास smartphones रहता है, data सबको मिल रहा है. तीसरा, money is digitized. So any good supply chain comprises the flow of material, information and money. What we have done is to build a direct supply chain company that can procure from a large number of smallhold farmers and move it directly to the consumer. More importantly, we communicate consumer demand. How did we convert the farmer to red okra, red lady's finger? Because the customers demanded red lady's finger. We converted cauliflower farmers to broccoli farmers near Hosur because Bangalore wanted broccoli. Cauliflower sells at 13 rupees a kg, broccoli sells at 36 rupees per kg. So demand information can be directly communicated through direct supply chains, and that's possible today. Dr. Kamalpreet, would you like to step in here and say how can Chhattisgarh take this model to the next level? How can this become a national model for governance? देखिए, इसमें खेती और अन्य इंडस्ट्री में बहुत अंतर रहता है. पहला जो बड़ा अंतर है वो ये है नेगोशिएशन ऑफ प्राइस. फार्मर जब कोई भी फसल उगा लेता है तो एंटायरली वो बायर्स मार्केट होता है. हमेशा ये बायर्स मार्केट होता है, कभी भी सेलर मार्केट नहीं होता, क्योंकि एक तो उसको रखने के लिए उसकी शेल्फ लाइफ सीमित है. मान लीजिए आज किसी ने टमाटर उगा रखा है तो बिना बेचे कितने दिन रहेगा, उसकी थोड़े दिनों बाद वो खराब ही हो जाएगा. सो देयर इज ए प्रेशर ऑन द फार्मर. फार्मर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन की हालत में कई बार नहीं रहता है. दूसरा, तो जब ये बायर मार्केट है तो एक तरीके का कलेक्टिव प्राइसिंग मैकेनिज्म. दुनिया के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट कंट्री है अमेरिका है, वहाँ पे फार्मर यूनियन और बायर यूनियन मिलके तय करता है कि रेट क्या होगा, और वो रेट पे बाहर आपको उस एरिया से माल नहीं मिलेगा. तो इसमें जो बीच बीच में जो बातें आती हैं, कई बार हमारे यहाँ भी कंपनीज सीड दे के भाग जाती है या बाद में प्रोड्यूस प्रोक्योर नहीं करती, तो इसका एक सर्टेनिटी जो है
वो लाना होगा। और ये बायर सेलर बिहेवियर दोनों साइड से जब इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा, स्थायित्व आ जाएगा, तो ये कमर्शियल फार्मिंग और बढ़ने लगेगी। जैसे अभी जो शहर है, जो बड़े मार्केट है, नेचुरली शहर में ही ज़्यादा मार्केट रहता है, तो जो हमारे यहाँ मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, तो रायपुर के आसपास के क्षेत्र में ये हाई वैल्यू क्रॉप्स, ये बहुत एकदम से इसका रगबा बढ़ रहा है। तो और जहाँ पे एनवायरनमेंट सूटेबल है, जैसे मान लीजिए बस्तर जगदलपुर की आपने बात कही, तो वहाँ पे पपीता है, हमारा कांकेर एरिया विच इज़ पार्ट ऑफ बस्तर एरिया, वहाँ पे सीताफल है, वो पूरे इंडिया में जाता है आज के लिए। तो ये बायर सेलर का जैसे ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लोगों को रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, किसान को पैसा मिलेगा, तो लगातार वो ना सिर्फ उस फसल को ज़्यादा उगाएगा बल्कि दूसरी फसलों में भी ब्रांच आउट करेगा, ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं करेगा। जी, पर ट्रेडिशनल फार्मिंग की भी जगह है, अपनी जगह है, राइट? जी, ट्रेडिशनल फार्मिंग में मैं ये कहूँगा कि उसमें अभी जो एमएसपी बेस्ड रेजिम है उसमें एक मॉडरेशन की ज़रूरत है, और धीरे धीरे लोगों के जो लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं मार्केट चेंज हो रहा है, आप कोविड के बाद देख लीजिए, सुपर फूड्स की कई डिमांड आ गई है। जो पहले लोग कुछ भी खाते रहते थे, तो आज के दिन थोड़ा सोच के खाते हैं कि क्या खा रहा हूँ, नहीं तो पता चला कोविड में मेरा वेट ज़्यादा है, मेरे को शुगर है, मैं उसी में निपट गया, और कई लोग ऑलरेडी उसमें कैजुअलिटीज़ भी हो चुकी है। सो एक जनरल अवेयरनेस आज के दिन कोविड की वजह से आया हो, जैसे भी आया हो, आ चुका है। उसके कारण लोगों की खान पीन की आदतें बदल रही हैं। इंडिया वैसे भी अर्बनाइज हो रहा है, उसकी वजह से भी खान पीन की आदतें बदल रही थी। सो फूड जो क्रॉप्स है, मान लीजिए गेहूं है और चावल है, इससे हटके जो अन्य क्रॉप्स की डिमांड आ रही है, तो खेती को भी वैसे वैसे मॉडर्नाइज होकर टैकल करना पड़ेगा। और जो आप चेन की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग यानी कि खेत से ही फसल की स्टोरेज शुरू करनी पड़ेगी, ताकि जो वेस्टेज होता है आज के दिन, मान लीजिए 1 टन टमाटर प्रोड्यूस हुआ, जब तक वो बाजार में पहुंचता है, हो सकता है 1 टन में से 400 किलो ही पहुंचता हो, तो उसका रेट तो वैसे ही 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो लॉस बेयर करना पड़ेगा, और वो प्राइस में ऐड ऑन होता है। तो वाइल यहाँ का फार्मर 20 रुपए में 30 रुपए में बेच रहा है, इसलिए आपको 80 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि बीच में वो चेन ही नहीं है जो ठीक से उस प्रोड्यूस को दिल्ली तक या जहाँ भी बाजार है वहाँ तक पहुँचा सके। बिल्कुल। एक और चीज़ प्रदीप जी, आई वांटेड टू आस्क यू कि कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि कोई फूड फैड बन जाता है, जैसे बीच में एवोकाडो का फैड आया था। इट्स द मोस्ट अनसस्टेनेबल काइंड ऑफ फ्रूट, बट येट इट वाज कल्टिवेटेड। तो ये भी तय करना होता है ना कि फार्मर फैड की तरफ ना चले जाए और ऐसी चीज़ें उगाए जो सस्टेनेबल हैं, राइट? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा कि गांव का जो एक बच्चा होता है, जो भूपेश जी बता रहे थे ना कि हम खीरा चुरा के खाते थे और ये करते थे, तो गांव का जो बच्चा है या उसके जो पिताजी हैं, उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, पर उसका जो कंजम्पशन लेवल होता है बहुत हाई होता है। जो जिस तरह का सीताफल वो खाता है, कस्टर्ड एप्पल वो खाता है, ठीक है, आप खरीद के दे तो वो 100 रुपये किलो होता है। जिस तरह का आम वो घर में खाता है, जो हम ब्लैक राइस खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड, वो जब यहाँ वो सब रोज खाता है। यदि आप उसको दिल्ली के काउंट्स में लेंगे तो पता चलेगा कि वो 2000 रुपये खाना रोज खाता है, ठीक है। इनफैक्ट आप ये बोल रहे हैं, बिकॉज अभी मुझे एक किसान भाई बोल रहे थे कि जो मैं 100 रुपये का बेचता हूँ, वो आपको नोएडा में 300 रुपये का मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि इससे भी जो सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया था, वो ये था कि इसके आगे की दिशा क्या होगी। तो आगे की दिशा मुझे जो लगती है कि 1910 तक हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड जीडीपी का 23% कंट्रीब्यूटर था, वर्ल्ड जीडीपी का। आज हम 2-2.5% पे हैं। तो ये जो एग्रेरियन कम्युनिटी थी, इसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं जाता था, साथ में इन लोगों का जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग से जो निकला हुआ प्रोडक्शन बाई मासेस है ना, वो जो जाता था। तो ये जो एग्रीकल्चर का जो आदमी है, ये 4 महीना किसान होता है, बाकी के 4 महीने में यही कारीगर होता है,
आर्टिजन होता है, और 2 महीने बचे में वो कलाकार भी होता है, ठीक है। तो ये जो किसान, कारीगर, कलाकार के वर्तुल में गांव का आदमी अपनी पूरी ऊर्जा को लगाता है और उससे जो उसको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वही इसको आगे ले जा सकेगी। तो हमको गांव के भीतर में आर्टिजन को खड़ा करना, एक इसी किसान को आर्टिजन में बनने की जो संभावना थी, उसके लिए रोड्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार गौठानों के भीतर में 1 एकड़ डेडिकेटेड रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रही है, जहां हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके, जैसे वो कपड़ा बनाता है, बुनकर बहुत है यहाँ पर, तो बेस्ट वैरायटी के वीव्स वहाँ लगें, बहुत अच्छे वैरायटी के वेफ्ट लगें, बहुत अच्छे किस्म की वहाँ पर डाइंग हो। दूसरा जो है, यहाँ बहुत सारा सीमेंट है, तो क्यों ना लोग यहाँ पर टाइल्स बनाएं। तो ऐसे करके हमारे पास 7,500 गौठान में 11,000 पंचायत हैं, 7,500 मतलब 7,775% गौठानों में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हम लोग इस बार 50% गौठानों में, माने 50% पंचायतों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, जहाँ पर उन बच्चों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके उनके खेती से बचे हुए समय में उनसे हम कुछ प्रोड्यूस कराएंगे, जो उनको अच्छा आर्टिस्ट बनाएगा, आर्टिज़न बनाएगा। तो ये जो है, ये आदमी को सस्टेन करेगी। केवल खेती के आधार पे 60% लोग छत्तीसगढ़ में मार्जिनल फार्मर, 2 एकड़ से कम ज़मीन है। अब कैसे उन लोगों को Possible to sustain it, कैसे करेंगे? यहाँ का आदमी जिंदा क्यों रहा? क्योंकि इसकी खेती में 50% हिस्सा खेती से आता था, 30% हिस्सा जंगल से आता था। तेंदुपत्ता आया, शहद आया, बहुत सारे फल फूल आए, मछलियाँ आईं, तो ये सब चीज़ें वहाँ से आती थी। बची हुई 10-15% जो चीज़ें थी, वो जो बनाता था, नए कारीगरी करता था, उनसे आती थी। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा जो है 50% का, उसको रिस्टोर करेंगे तो एक बहुत सुंदर कम्युनिटी बन जाएगी, जो अपने आप में एक बाजार खुद है। मतलब आप देखिएगा, पेप्सी ने हर गांव में जो छोटे छोटे किराने दुकान है, वहाँ पर फ्रिज दे दिया है कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए, उसका ऊपर का 3 हिस्सा खाली रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे दूध का पैकेट, गांव वाला 25 रुपये का या 30 रुपये का दूध नहीं खरीद सकता, पर आप 10 रुपये में दूध बना के दे दो ना, आप उसको 10 रुपये की पैकिंग में दे दो, खरीद लेगा। तो हम इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये मार्केट पहले यहाँ पर ब्लॉक हो जाए और ये पैसा घूम के उसे घर में पहुँच जाए। तो ये सब चीज़ों से डेयरी खड़ी हो रही है और एग्रीको इंडस्ट्रीज़ भी खड़ी हो रही हैं। अब उसके साथ फूड प्रोसेसिंग की बात आई, तो आखिरी बात कह रहा हूँ कि बेस्ट फूड प्रोसेसिंग जो है वो सोलर फूड प्रोसेसिंग है। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे आप सर बता रहे हैं कि आज टमाटर 40 रुपये किलो है, 4 महीने बाद 1 रुपये किलो जाएगा, और हमारे किसान के पास कोई रास्ता नहीं है कि उस 1 रुपये किलो के टमाटर को स्लाइसेस में काट के सोलर ड्राई करके ड्राई टमाटो को पैक करके बेच सके। कोई भी ड्राई फूड जो होता है, ड्राइड मतलब वेजिटेबल होता है, वो नॉर्मल वेजिटेबल से ज़्यादा टेस्टी होता है। क्यों बताइए? क्योंकि ना उसमें केवल एक्टिव इंग्रेडिएंट बचता है, वाटर उसका निकल जाता है। अच्छा, सो इट बिकम वेरी टेस्टी अपेरेंटली। तो हमारे यहाँ पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 महीने सब्जियाँ होती थी, बाकी तो हम सूखा ही खाते थे। हर चीज़ का सूखा मिलता है, यहाँ खोइला बोलते इसीलिए हैं। वो सूखा मशरूम हाँ, पाउडर वगैरह। everything. अच्छा, सो दिस इज ऑल ट्रेडिशनल Yeah. विजडम। तो केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें जी आप, जी। देन यू कैन डू एवरीथिंग। So that's why we need people like Mr. Jayaraman who can Yeah. help us with the technology. Exactly. But that doesn't always happen. What is the gap that is there? Gap was infrastructure. Right. Government does not have any machinery inside the village who can support these activities. Right. Now this Gautan activity, which is 5-acre land, given especially for this kind of things. 3 acres is dedicated to cattle conservation and upliftment of races. So ये जो है उसको 3 एकड़ दिया, 2 एकड़ बचा, उसमें 1 एकड़ हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। तो 75% गाँव में ये मतलब 1,65,000 एकड़ ज़मीन सुरक्षित हो गई है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने 2 साल में खड़ा किया जी। कोरोना के बावजूद। सो कुडोज टू दिस ऑफिसर्स, Absolutely. है ना। Mr. Jayaraman, yeah, आई बोलिए। जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग। जैसे किसान की जो आमदनी होती है वो सिर्फ क्रॉप से नहीं होती, अलाइड एक्टिविटीज़ से ऑलमोस्ट 30 to 40% आमदनी
किसानों की होती है, जैसे मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मशरूम है, बी कीपिंग है। ये जो गोठानों की बात की प्रदीप शर्मा जी ने, तो हमारे यहाँ लगभग 7,777, क्योंकि कल ही मैंने प्रेजेंटेशन किया, सो आई नो द एग्जैक्ट नंबर। सो इतने गोठान हैं जिनमें ऑलमोस्ट 10,000 SHGs हमारे काम कर रहे हैं, विच हैव टोटल मेंबर्स अराउंड 60,000। और ये स्कीम में हम लोग उनको लगभग 42 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन एंसिलरी एक्टिविटीज़ में दे चुके हैं थ्रू द गोठान ओवर द पास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर यू कैन से। तो ये जो उनकी इनकम बढ़ रही है और जो एंसिलरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग एक तरीके से इसको स्केल अप करके मार्केट से लिंक करेंगे। जैसे अब बहुत सारे लोग मशरूम पैकिंग कर रहे हैं या अन्य प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम लोग गोधन न्याय मिशन जो उसमें एक प्रशासनिक व्यवस्था बना रहे हैं, तो उसमें मार्केटिंग के लिए हम लोग लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अलग लोग 10 लोग बना रहे हैं, लेकिन जब वो एक कॉमन स्ट्रक्चर में आते हैं, कॉमन कंपनी से टाई अप होता है, कॉमन लेबल के अंदर आते बिल्कुल, हैं। तो क्वालिटी भी मेंटेन होता है, तब उनकी मार्केट एक्सेस बहुत अच्छी हो जाती है और उनकी नेचुरली इनकम भी बढ़ेगी। ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। Mr. Jayaraman, your last thoughts on this? I think this is a very important point जो आपने बोला था. In fact, many of these SHGs and their products can be made available on a platform like ours or anybody else. And companies जैसे हमारे कंपनी है या Amazon है, बाकी सब लोग हैं, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल लोग भी हैं, इक्विपमेंट सिलेक्शन के लिए कंसल्टेंट्स भी हैं. तो वी आर वर्किंग फॉर एग्जांपल विद वन FPO जो दे वर ग्रोइंग टर्मरिक. अभी ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर हमारे लिए पैक करके भेज रहे हैं हमारे ब्रांड में, एंड वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट इट. सिमिलरली गार्लिक पीलिंग, there are garlic peeling machines available where we are able to manufacture peel garlic and 24 hours के अंदर chilled vehicle में delivery हो जाता है customer को. And this is required in large quantities in big cities and hotels. Yes. So direct supply chains can make this happen very easily. We have a woman entrepreneur somewhere near Coimbatore who actually packs spices for us. उन्होंने बैंक लोन लिया हमारी recommendation से, हमारी guarantee से, and we selected the equipment for them. She has already expanded her factory to three machines. And this shows that it is possible, and the जो friction था because they did not have access to the market is removed through technology and platforms like this. So just the last thoughts from you, Pradeep ji, and then Kamalpreet ji. So what is the one thing that you'd like to see change in this model of development? One thing that you'd like to see done. Let's say you'd like to see done this year. See, this year our target is, as I said, for first 2 years, this Gotan is a kind of infrastructure project. The government has developed all this, mechanism inside the village. But this year, we wanted to make it as a kind of people's Gotan, where people can think, सवेरे उठे और सोचे, आज मेरे को क्या करना, चलो Gotan चलते हैं. So he would get the job, he would get his own raw material, he would get his resources, technology, whatever requirement. So now this is a kind of production station in the village, where people can just go and spend time and earn money and learn something and come back happily and dance and sleep. Sounds like a great idea. Yeah. Dr. Singh? देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा क्वांटिटेटिवली डिफाइन करूंगा, हमारा टारगेट ये है कि बाय द एंड ऑफ मार्च दिस फाइनेंशियल ईयर 10,000 गोठान हम लोग वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें और सब जगह मल्टी एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट कर दें, और कम से कम उसमें 2,000 जगह हम लोग कोशिश करेंगे कि जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का कॉन्सेप्ट है उसको हम शेप देना शुरू कर दें, ताकि जो विलेज में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी से इनकम जनरेशन, अल्टीमेटली ये सारों चीज़ों का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है, किसान और जो मजदूर है उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए. तो ये हमारा टारगेट है कि इसको हम लोग अचीव करें और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को हम लोग सपोर्ट करें और इनको एक अम्ब्रेला के तहत जो आज के दिन स्प्लिंटर्स में काम हो रहा है
इसको ऑर्गेनाइज करके एक अम्ब्रेला के तहत हम लोग लेके आए. दिस इज आवर ड्रीम. Thank you so much, gentlemen. It was a real pleasure and quite eye-opening talking to you. All the very best. Thank you.